السلام علیکم، آپ کو ہمارے چینل دل موم کا دیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شبو میرے بھائی کے نکاح میں آئی تو اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملی، مگر اب وہ ہمارے گھر کی بہو بن چکی تھی اور سارا گاؤں میرے والد کو جھک کر سلام کرتا تھا۔ تبھی ان کی بہو کے بارے میں ایسی ویسی باتیں سن کر گاؤں والوں نے ان باتوں پر کان نہ دھرے کہ سبھی کو بابا جان کی عزت مطلوب تھی۔ بالآخر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب شبو بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ رخصتی کے بعد وہ ایک دن بھی خوش نہ نظر آئی۔ اس کا خیال تھا کہ سسرال والے ان کے ہم پلہ نہیں ہیں۔ وہ اونچے گھر کے خواب آنکھوں میں سجا کر آئی تھی، جبکہ ہمارا گھر تو کچی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ بابا جان کی زمین بے شک بہت تھوڑی تھی، لیکن شرافت کی وجہ سے عزت بہت تھی۔ اپنی زمین پر میرے دونوں بھائی خود ہل چلا کر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ شبو بھابھی کی الٹی سیدھی فرمائشوں کو جب بھائی اسلم پورا نہ کر سکے تو روز روز کی جھک جھک سے تنگ آ کر انہوں نے دبئی جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہاں کی کمائی سے بیوی کی خواہشات پوری ہوں تو ان کے دن پھر جائیں۔ اسلم بھائی کے دبئی جانے کے بعد کھیتی باڑی کا تمام بوجھ چھوٹے بھیا اکرم پر آ گیا۔ بابا تو عمر رسیدہ ہو گئے تھے، زیادہ وقت عبادت میں گزرتا۔ ان کو میری شادی کی بھی فکر تھی کہ ماں فوت ہو چکی ہے۔ میں ایک سیدھی سادی لڑکی تھی۔ جب بھابھی آ گئی تو بہت خوش تھی کہ چلو ماں کی جگہ پر آ گئی ہے۔ نئی دلہن بھابھی کے چاؤ میں خوشی خوشی سارے گھر کا کام خود کرتی اور شبو کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی کہ میری پیاری بھابھی کے ہاتھ میلے نہ ہو جائیں۔ بھابھی کے ہاتھ تو میلے نہ ہوئے، دل ضرور میلا ہو گیا۔ ذرا ذرا سی بات پر ایسی بات کرتی کہ دل دکھ جاتا۔ اس طرح ایک ایک کر کے وہ سارے پھول مرجھا گئے جو میں نے شبو بھابھی کے لیے اپنے دل میں کھلا رکھے تھے۔ 2 سال بعد اسلم بھائی دبئی سے آئے تو بہت سے تحفے لائے، دلکش ریشمی جوڑے، ٹیپ ریکارڈر، استری اور سنگھار کا سامان۔ انہوں نے کچھ خوبصورت جوڑے بھابھی کو دیے اور کہا کہ یہ باقی سامان سب صاحبہ کے شادی کے لیے رکھ دو۔ اگر ہمارے پاس اسے دینے کو اچھا جہیز ہوگا تو رشتہ بھی اچھے گھر میں ہو سکے گا۔ بلکہ ایسا کرنا کہ جب رشتہ دار عورتیں تم سے ملنے آئیں ان کو یہ چیزیں نکال کر دکھانا اور کہنا کہ بہن کے جہیز کی خاطر میرا شوہر دبئی سے لایا ہے۔ یوں رشتہ داروں میں یہ بات پھیل جائے گی اور صاحبہ کو اچھے اچھے رشتے دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ بھابھی نے بظاہر ہاں کہہ دی، مگر وہ شوہر کی اس ہدایت پر دل ہی دل میں جل کر خاک ہو گئی۔ سوچنے لگی کہ شوہر کی ساری کمائی تو جہیز کی صورت میں نند لے جائے گی۔ یہ کمائی اس کے تو کسی کام نہ آئی، جبکہ اسلم سے جدائی بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ صاحبہ کے بعد اکرم کی باری آ جائے گی تو اسلم پھر اس کی شادی کے اخراجات کی خاطر کمانے دبئی چلا جائے گا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ ایسی کیا ترکیب کروں جو یہ سب چیزیں نند دوسرے گھر نہ لے جا سکے۔ اسے خیال آیا کیوں نہ وہ میری شادی اپنے بھائی سے کرا دے، اس طرح شوہر کی کمائی اس کے میکے جائے گی۔ بھابھی شبو انہی سوچوں میں تھی کہ بابا جان نے میرا رشتہ اپنے بھائی کے بیٹے بلال سے طے کر دیا، جو بہت خوبصورت اور شریف لڑکا تھا۔ یہ زمیندار گھرانہ تھا اور کھاتے پیتے لوگ تھے۔ بابا بہت خوش تھے کہ بیٹی اپنوں میں جا رہی ہے۔ انہوں نے اسلم بھائی سے کہا سکتے تھے کہ گاؤں کا ایسا ہی رواج تھا۔ بھابھی کو یہ معاملہ ایک آنکھ نہ بھایا کہ اس کا شوہر اپنی محنت کی ساری کمائی بہن کی شادی پر لٹا دے۔ ایک دن انہوں نے بابا جان سے کہا، چاچا جی میں چاہتی تھی کہ صاحبہ کی شادی میرے بھائی ریاض احمد سے ہو تاکہ ہمارے رشتے اور زیادہ مضبوط ہو جائیں۔ بیٹی تمہاری یہ بات اچھی ہے، مگر میں اپنے بھائی کو زبان دے چکا ہوں، رسم منگنی بھی ہو گئی ہے، لہٰذا اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ یوں بھی وٹے سٹے کی شادیاں اکثر تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ میری ایک ہی بچی ہے جس کی ماں مر چکی ہے۔ اب اگر میں صاحبہ کا رشتہ تمہارے بھائی سے کرتا تو شادی وٹے سٹے کی ہو جاتی۔
बाबा जान का ये जवाब सुनकर शब्बो भाभी अफसुर्दा हो गई। वो जान गई कि मेरी मंगनी का टूटना इस कदर आसान नहीं। फिर भी वो इसी सोच में रही कि किसी तरह मेरी बिलाल से मंगनी टूट जाए और दुबई की कमाई उसके बाप और भाई के घर जाए। एक दिन बिलाल बाबा जान से मिलने आया। इत्तफाक से वो शहर गए हुए थे। मैं अपने मंगेतर को देखकर कमरे में छुप गई। शब्बो भाभी ने आगे बढ़कर उसकी आवभगत की। बरामदे में चारपाई बिछा दी। फिर दोनों चारपाई पर बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में भाभी ने यकदम अपना लहजा धीमा कर लिया और बोली, एक बात तुमसे करना चाहती हूँ, बशर्ते कि मेरा नाम ना लो। ये तुम्हारे भले की बात है। कहो भाभी, मैं सुन रहा हूँ। वादा करता हूँ कि किसी को ना कहूँगा। बिलाल ने जवाब दिया, बात यह है कि बेशक साहिबा बहुत अच्छी है, सुघड़ और ख़ूबसूरत भी है, मगर इस दिल का क्या करें कि ये किसी की मानता नहीं। क्या मतलब है भाभी जान इस बात का? बिलाल ने चौंक कर कहा, मतलब ये कि वो तुमको पसंद नहीं करती, तुमसे शादी नहीं करना चाहती, बल्कि वो किसी और को पसंद करती है। आप फिर उसकी वहाँ शादी करा दें। ऐसा नहीं हो सकता वीरा। भला बाबा जान मेरी बात क्यों मानेंगे? तो मैं क्या करूं भाभी? तुम शादी से मना कर दो। मंगनी टूट जाएगी तो साहिबा का रिश्ता उसकी खुशी से हो पाएगा। ये बातें सुनकर बिलाल सकते में रह गया। वो बहुत परेशान हुआ। दिन रात जिस लड़की को ख्वाबों में बसा रखा था, वही किसी और के ख्वाब देख रही थी। एक लम्हे को उसने सोचा कि शब्बो झूठ बोल रही है। तभी उसने कहा, नहीं भाभी जी, मैं ये बात नहीं मान सकता। अच्छा तो फिर कभी खुद देख लेना, तब तो मेरी बात का तुमको यकीन आ जाएगा। तुम मेरी बहन की शादी में आ जाना, वहाँ अपनी आंखों से देख लेना। परेशान और सोगवार बिलाल इसी वक्त हमारे घर से चला गया और मैं शशोपंज में पड़ गई कि आखिर ऐसी बातें भाभी ने मेरे मंगेतर से क्यों कहीं, जबकि जानती हैं कि ये मंगनी पत्थर की लकीर है। कहने को भाभी ने इतनी बड़ी बात कह दी, मगर अब इसको साबित करना मुश्किल हो गया। मेरे दिल को इत्मीनान था, ये जो कर ले बाबा जान और ताया जान इस मंगनी को तोड़ने वाले नहीं हैं। कुछ दिन गुजरे कि भाभी की छोटी बहन की शादी का बुलावा आ गया। बाबा जान से कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो साहिबा को साथ ले जाऊं। बाबा जान ने ये उज़र किया कि ये तुम्हारे साथ चली जाएगी तो मुझे खाना कौन बना कर देगा, मगर बहू के इसरार पर बिल आखिर इजाज़त दे दी। भाभी के लिए मेरे दिल में जो कदूरत और गुस्सा था वो रफ़ा हो गया और मैं शादी में जाने की खुशी से निहाल हो गई कि हमारे घरानों की लड़कियां ज़्यादातर घरों से नहीं निकलती थीं, लिहाजा रिश्तेदारों की शादियों के मौका पर ही हमको घर से बाहर जाने की शादमानी नसीब होती थी। शब्बो भाभी के वालिदैन भी बाबा के रिश्तेदार थे, तभी उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। इससे पहले कभी घर से ना निकली थी। ये सफ़र का पहला मौका था। मैं बहुत खुश थी। जब शादी वाले घर पहुँचे तो पता चला कि मेरे सास ससुर और बिलाल भी शिरकत में आए हैं। मेहंदी वाले दिन भाभी ने मेरे कान में कहा कि बिलाल ने पैगाम भिजवाया है कि साहिबा से कहो 1 मिनट को बाड़े में आकर मेरी बात सुन ले। ये बाड़ा घर से नज़दीक ही था, जिसमें उनकी 2 गायें और 1 भैंस बंधी हुई थी। बाड़े का दरवाज़ा घर की दीवार में से निकाला गया। भाभी के मुंह से ऐसा पैगाम सुनकर परेशान हो गई। तब वो कहने लगी, तेरे भाई की कसम मैं किसी से ना कहूँगी। पहले तो मैंने इनकार किया, फिर सोचा ये मौका है इसको बताने का कि किसी और को पसंद करती हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैं किसी को भी पसंद नहीं करती। भाभी ने ये गलतफहमी इस वजह से पैदा करने की कोशिश की है कि वो मेरी शादी अपने भाई से कराना चाहती हैं। बड़ी जुर्रत करके बिल आखिर हामी भर ली। ताहम दिल धड़क रहा था। मुझ सी लड़की के लिए जिसने कभी किसी गैर मर्द से बात ना की हो, किसी से मुलाकात करना, खा वो इसका मंगेतर ही क्यों ना हो, एक बहुत बड़ी बात थी। दोपहर सोचते गुजर गई और शाम आ गई। अभी मैं तजब्ज़ब में थी कि एक रिश्तेदार औरत ने आकर कहा, तुम्हारे बाबा भी आ गए हैं, वो तुमको बुला रहे हैं। बाबा जान बैठक में मौजूद थे। वहाँ गई तो वो अकेले बैठे हुए थे। बोले, बेटी साहिबा, सच बता कि तुमको भाभी ने क्या कहा है।
ये सुनकर खौफ से सुन हो गई और मारे डर के बाबा जान को बता दिया कि शब्बो भाभी ने मुझे बाड़े में बिलाल से मिलने को कहा है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। शाम को भाभी ने याद दिलाया कि रात 8 बजे जब बारात वाले दुल्हन को मेहंदी लगाने में मसरूफ़ होंगे, तुम बाड़े की तरफ जाना, मैं साथ चलूँगी। बिलाल वहाँ तुम्हारा मुंतज़िर होगा। मैं तो बाबा जान को बता चुकी थी। इधर बिलाल ने भी उनको मुतल्ला कर दिया कि शब्बो ने मुझे बाड़े में बुलाया है। जाने वहाँ बुलाने का क्या मकसद है। मकसद ये था कि भाभी ने वहाँ मुझे अपने भाई से मिलवाने का बंदोबस्त किया हुआ था और बिलाल को भी उसी वजह से बुलाया था ताकि वो इसे दिखा सकें कि मैं बाड़े में रियाज से मिलने पहुँची हूँ। खुदा को भाभी के मंसूबे का पर्दा चाक करना था, तभी पहले बिलाल ने और फिर मैंने बाबा जान को आगाह कर दिया। शादी ख़त्म हो गई तो बाबा जान मुझे लेकर घर आ गए, जबकि भाभी ने 2 रोज़ बाद आने का कहा तो इनके वालिद ने बाबा से बेटी के लिए इजाज़त मांग ली। बाबा तो पहले ही शब्बो को साथ ले जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनकी इस हरकत पर बड़ा दुख पहुंचा था। उन्होंने भाई अकरम को बुलाकर सवाल किया कि बहू ने बच्ची से ऐसी नाजेबा बात कही है, अब तुम क्या कहते हो। अकरम ने वालिद को दिलासा दिया कि हौसले से काम लें, भाई परदेस में हैं, वहाँ इनको बताने से असलम परेशानी में पड़ जाएगा। पहले वतन बुलवाते हैं, जब यहाँ आ जाएगा तब बात करेंगे। लेकिन बाबा जान से ज़ब्त ना हो सका। बेटे को फ़ोन करके तमाम हालात से आगाह कर दिया। भाई नौकरी छोड़कर आ गए और बीवी से कहा कि तुमने ऐसी घटिया बात मेरी बहन के लिए सोची कैसे। जी चाहता है अभी कुल्हाड़ी का एक वार करके तुमको 2 टुकड़े कर दूं, लेकिन बाबा जान ने कसम दी है कि मैं कुल्हाड़ी को हाथ भी ना लगाऊंगा। शब्बो भाभी ने रो रो कर सफाई पेश की कि मुझे तुम्हारी बहन से इस कदर प्यार है कि अपनी भाभी बनाकर रिश्ता गहरा करना चाहती थी। छोटी नंद भी घर की इज्जत होती है, हम शरीफ लोग हैं और शरीफ घरानों में ऐसा नहीं होता। बहरहाल शब्बो की किसी ने नहीं सुनी कि झूठ के पाँव नहीं होते। इनको असलम भाई ने तलाक दे दी और वो रोती हुई हमारे घर से चली गई। इसके बाद मेरी शादी बिलाल से हो गई और अब हम खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ताहम मैं अक्सर सोचती हूँ, अगर मेरी भाभी नीयत साफ़ रखती और मेरी मंगनी तोड़वाने को बोहतान तराशी ना करती तो आज वो भी खुश व खुर्रम मेरे भाई के साथ अपने घर में आबाद होती। आज असलम भाई इलाके के अमीर आदमी हैं। उन्होंने बड़ा पुख्ता घर भी बनवा लिया है जो जदीद तर्ज के फर्नीचर और तमाम सहूलियात से आरास्ता है, जिनकी ख्वाहिश भाभी किया करती थी। इस घर में सुख की हर शय मौजूद है, बस वहाँ एक शब्बो ही मौजूद नहीं। सच है, जो जैसा करता है वैसा ही भरना पड़ता है। सत शुक्र कि मैंने और बिलाल ने बाबा जान को असल बात बता दी थी, वरना जाने वो हमारे हक़ में कौन से कांटे बोना चाहती थी। हर इंसान को चाहिए कि वो बुहतान लगाने और किसी गलत काम का मंसूबा बनाने से कबल खुदा से डरे कि वो बड़ी ताकत और अज़मत वाला है।